Om Shanti. Good morning, everyone, and wish you all a very happy Valentine Day. So, and in the world, also all over, there is the vibe of love. Everyone is celebrating love, and we today also have a very, very special session, a very special guest with us. So, without wasting any time, because I know that we all wanted to hear from her, there are a lot of questions, there is a lot of insights, and I know every time जब भी हम रिनी दीदी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, we always gain something new. So let me invite Sister Rini. I really don't think दीदी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है. Since morning I've been receiving calls जिन्होंने कोर्स तक नहीं किया है, मुझे नहीं पता उनके पास ये कैसे लिंक आया, but they have got the link and they have asking me questions. So everyone knows about Sister Rini. So welcome, Didi, and thank you once again for coming and for sparing time for us on this special occasion. If you all allow me, I have written a very small poem on Valentine Day for Baba, for God, and for Sister. So very short poem. Okay, I won't take much time. It's an inspiration that I have taken from childhood poem जहाँ मैंने सुना था. So and this is what I have been since morning thinking. सोच रहे थे तो वो बस that's what I'm just gonna share. From the dream I wake, I open my eyes, and the world is new with its thousand dyes and its skies of blue. The world is alive and the world is fine, and my heart is light as I breathe the air. I thank you, God, for the gift of life and for the joy. I thank you for the dreams that come in the night and for the waking that brings us the light. I thank you, Sister Rini, for waking yourself up, sprinkling the truth into our dream reality. I thank you, everyone. Om Shanti. So this was a little something that I really felt कि हम dream reality में सो रहे थे, and thanks ठीक है to each one who is waking up, because that is indeed helping others to wake up from their reality. So thank you, and I would also want, हमने दीदी से पूछा था कि हम आज के सेशन का फॉर्मेट कैसे रखें, तो दीदी said it has to be very casual. Everyone is invited to ask, है ना. बहुत रेयर मैंने स्पीकर्स में देखा है, वरना एक से ज्यादा it is not allowed, only speaker is allowed. But दीदी के सेशन में she loves to hear from all of us. So फील फ्री. आपको देर आर सम सोल्स जिन्होंने मुझे अपने क्वेश्चन भेजे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप खुद वीडियो ऑन करके रीनी सिस्टर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, एंड एज ऑलवेज आई विल बिगिन with my question. Didi, shall I? Okay. हम 1 मिनट का साइलेंस लें, फिर स्टार्ट करें. The love for the truth, the love for Baba is why
वी ऑल आर हियर, हम सब बाबा से बहुत प्यार करते हैं और हमें ये जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छी लगती है, हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। बट टुडे ऑल्सो कोई टेम्पररी चीजें या कोई मनुष्य का लव हमें पुल करता है। वाई डू वी इवन टुडे स्ट्रगल कि हमें बाबा का प्यार फील नहीं होता? हमें क्यों ऐसा लगता है कि मेरा मन ही क्रिएट कर रहा है या मैं ही विजुलाइज कर रही हूँ, जबकि जो आउटसाइड हम जो मनुष्य का लव है उसको ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीदी आज वैलेंटाइन डे है एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर, मेकिंग ईच अदर फील वेरी स्पेशल, हगिंग ईच अदर। लेकिन गॉड का लव इज वेरी डिफरेंट एंड समटाइम्स इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। हम अगर अच्छे मूड में है, लाइट मूड में है, तो बहुत इजी लगता है, लेकिन व्हेन वी फील दैट वी आर नॉट फीलिंग गुड तो हमें ऐसे लगता है कि हमें किसी से बात करनी है, चलो फ्रेंड से बात कर लेते हैं, चलो किसी सिस्टर से बात कर लेते हैं जो हमें हमारे बारे में ही कुछ अच्छा बताएं एंड वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। सो हाउ इवन आफ्टर understanding the truth and understanding God and knowing him and realizing him, how how can he become my constant companion every second, every moment? I just want to be with Baba and none other. And how to make this a constant journey? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा ना, क्योंकि सर्व आत्माओं को बाबा से इतना प्यार, इंग्लिश हिंदी बोथ मिक्स चल रहा है ना? ओके, एवरीबॉडी Yes, अंडरस्टैंड। Didi, but Hindi, I think Hindi would be better. तो हम जैसे सब यहाँ पे, आपने कहा भी कि हम सब इसलिए बाबा के साथ ज्ञान में हैं क्योंकि बाबा से हम सबको बहुत प्यार है, राइट? वही रीजन है कि हम सब बाबा के साथ आज यहाँ पर भी बैठे हैं, राइट? और कई कई हद तक तो हमने ऑटोमेटिकली ही चीजें छूट भी गई है ना? मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप ही वो इंटरेस्ट खत्म होने लगा, है ना? पर एक ही चीज है, बाबा जो हमें प्यार का मीनिंग बता रहा है ना, वो मीनिंग हमको समझना है। व्हाट डज लव रियली मीन? जो हमने अभी तक प्यार की परिभाषा समझी थी, वो क्या परिभाषा थी? कि कोई गिफ्ट्स दे, कोई मेरे पार्ट के बारे में कुछ अच्छा बोले, मुझे एलिवेट करे, मेरी कुछ थोड़ी सी एक्नॉलेज करे, मुझे थोड़ा सा प्रेज करे, प्रेज नहीं तो क्रिटिसाइज तो नहीं करे, है ना? तो हमें ये लग रहा था कि प्यार की डेफिनेशन है कि कोई मुझे पूछे, मेरी केयर करे। वो मैं कौन? मैं पार्ट, मैं नाम रूप, मैं ये बॉडी माइंड, है ना? तो इसने जो देखा कि बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग हुई, व्हाट इज ट्रू लव? तो ट्रू लव, इट मे लुक लाइक इट्स टफ लव, हाँ, but it's not tough love, it's real love. तो बाबा का प्यार का मतलब है कि आत्मा अपने उस सत्य को जागृत हो जो कभी चेंज नहीं होता है, लव दैट विच ऑलवेज एग्जिस्ट्स। तो बाबा हमें जगाता है, हमें बताता है कि तुम कौन हो, पहले तुम अपने आप को जागो, क्योंकि अगर तुम अपने सत्य को नहीं जागोगी तो तुम जिसको समझ रही हो वो मैं हूं, तुम कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी, कांस्टेंट एंजाइटी, कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट अटैचमेंट, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को अपना समझकर जी रही हो, उन संस्कारों को अपना समझकर जी रही हो, तो यू आर कॉन्स्टेंटली बेगिंग फॉर लव। दूसरों से हम हमेशा कुछ मांगने की, वो मुझे प्यार करें, इसलिए मैं एज अ पार्ट, आई द सोल बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दीज थॉट्स, एंड देन एज दीज संस्कार्स एंड दीज थॉट्स, मैं आत्मा उनसे, हम जिसको प्यार बोलते हैं, प्यार है नहीं, पर हम उनसे एक्नॉलेजमेंट की, उनसे उनके अप्रूवल की, एक तरह से बेगरी,
होती है ना? फिर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कंप्लीट बेगरी एट दिस टाइम, है ना? पर जब बाबा आते हैं हमें बोलते हैं कि डू यू नो हु यू आर? तुम जिसको बाहर ढूंढ रही हो ना, प्यार को, एक शांति को, और जो कुछ तुम बाहर ढूंढ रही हो ना, वो तुम खुद हो। डू यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई? डू यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इट? तो हमने क्या किया कि बाबा के साथ सारी बातें करनी शुरू कर दी शुरू शुरू में, है ना? कोई भी बात होती, किसी को भी पहले तो आदत थी ना, फोन उठा के मम्मी को फोन कर लिया, कुछ भी अंदर से प्रॉब्लम हो रही, उठाया फोन, अच्छा मम्मी आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ठीक नहीं है, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, तो टेम्पररीली तो अच्छा लगता था। पर जैसे ही फोन रखा, थोड़ी देर बाद वापस वही शुरू। फिर वो भी वहां पे चिंता, मैं भी यहाँ पर आधी खुश। फिर वो शाम को कोई घर वाले वापस आते थे तो उनसे बैठकर बोलती, वापस वही बातें रिहैश करते। हम्म तो इसने देखा कि पैटर्न क्या था ज्ञान में आने से पहले। खुद तो दुखी होते ही थे, दूसरों को भी दुखी करते थे, और उन्हीं से सारा टाइम दूसरों की कंपनी चाहिए होती थी, डिपेंडेंसी। हम्म पर जब बाबा का ज्ञान मिला तो देखा कि बाबा ने आत्मा को जगाया, और जब आत्मा जागी तो उसको पता चला कि मैं अगर सिर्फ अंतर्मुख होकर अपने अंदर के सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं उनको साक्षी होकर देखती हूँ। इसने लिखना शुरू किया, बाबा को लिखकर देखा, लिखना शुरू किया तो देखा जो सप्रेस्ड इमोशंस थे ना, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। पहले दिखते नहीं थे, पहले मैं उनका स्वरूप थी। पर बाबा का प्यार, मतलब बाबा मुझे अपने सत्य स्वरूप में भी एकदम अपने साथ, अपने ट्रुथ में रखता है, और उसमें बिठाकर मुझे अपने अंदर की जो सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड फीलिंग्स थी, उनको साक्षी होकर देखने में मदद करता है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा फायदा होने लगा। तो जैसे कभी कोई गुस्सा करता, या कभी कोई नाराज होता, या मैंने कुछ अच्छा किया तो उसकी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको एक्नॉलेज नहीं करता, बल्कि दो और सुना ही देता। तो वो जब होने लगा तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा बाबा से बात करनी शुरू की कि बाबा ये ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे तो आप जो सिखा रहे हो कि मैं तो बहुत पीसफुल हूँ, द नेचर ऑफ द सोल इज हैप्पीनेस, बट मुझे ये हैप्पीनेस फील क्यों नहीं हो रही है फिर, है ना? तो उससे बात करनी शुरू करी तो उसने बोला कि तुम मेरे साथ बैठो और जो भी फीलिंग आ रही है लिखो उसको, मुझे बताओ, जो भी आ रहा है ना मुझे बताओ, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि उसको कैसे देखना। बस एक चीज वायदा करो, उस वक्त तुम कुछ नहीं बोलोगे। उस वक्त तुम कुछ नहीं बोलना, तुम मुझसे बात करना। तो है ना, अंदर आता भी था ना कुछ, अंदर से इमोशनल आउटबर्स्ट या फीलिंग का आउटबर्स्ट, किसी ने कुछ कह दिया तो ज्ञान भी यूज करता था माइंड। माइंड बोलता तूने फील किया, अब तो तू फेल हो गई। माइंड ऐसे भी बोलता था। तो मैं वो भी लिख देती थी बाबा को, आत्मा, कि बाबा ये मन ऐसे बोल रहा है, आपने भी बोला ना मुरली में, तू तो फील करेगी ना, हो गई फेल। देख तू यहाँ पे सफाई कर रही थी, इन्होंने बोला परेशान मत करो, अभी तंग मत करो, और एकदम से सफाई करते करते वो अंदर से इमोशंस आने लगे। एक तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ और ऊपर से मुझे सुना दिया चार। हम्म ऐसे ऐसे फीलिंग्स आती भी थी ना, उस वक्त कुछ नहीं बोलती थी, बस एक इसने किया, उस वक्त कुछ नहीं बोलूंगी। फिर क्या करती थी, जैसे ही वो सब काम छोड़ के पहले एक बार डायरी में लिखती थी। हम्म कि बाबा मैं आपको सच सच बता रही हूँ, ये फीलिंग आ रही है। हम्म मुझे नहीं पता आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, बस मुझे इतना पता है कि आप जो बोल रहे हो, आप सत्यता का सागर हो, और आप जो कह रहे हो वो सत्य है, वो झूठ नहीं हो सकता। इतना इसको निश्चय था शुरू से। हाँ, तो इसने लिखा बाबा को। ऐसे लिखते लिखते क्या होने लगा, उससे जैसे बातें होने लगी बाबा से, और बाबा ने ही आंसर देना शुरू कर दिया, है ना? कि देखो फीलिंग आई भी है ना,
तो फेल तब होगे जब उसको तुम अपना बना लोगे। तो उस फीलिंग को अपना नहीं बनाना, अपना बनानी नहीं, अपना बनाओगे फेल होने का मतलब क्या है, तुम उसको अपना बनाओगे, फिर तुम उस दुख को भी अपनी आइडेंटिटी बना लोगे। फेलियर वो है, फेलियर ये नहीं कि मैंने कुछ गलत कर लिया और बाबा मुझे दंड देगा, धर्मराज मुझे दंड देगा, वो फेलियर नहीं है। फेलियर मतलब आई माई सेल्फ विल क्रिएट सॉरो फॉर माई सेल्फ, है ना। तो ना मुझे दुख देना है ना दुख लेना है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दी उससे। तो इतना अंदर से पावर आत्मा को महसूस होने लगा अपना कि आई रियली हैव द पावर एंड दीज सोल्स आर रियली हेल्पिंग मी बिकम फ्री फ्रॉम दिस इमोशनल बैगेज। जो मेरे अंदर सप्रेस्ड एनर्जीज हैं उसको ऊपर आने में मदद कर रही हैं। और बाबा उधर जो है वो मुझे अपने परफेक्ट फॉर्म में मुझे ये बार बार बोलता है, तुम कुछ नहीं, तुम मेरे जैसी हो, तुम मेरे जैसी हो, बैठ के लिखो मुझे। तो लिखते लिखते लिखने में क्या होता है, आप थोड़ा धीरे धीरे लिखते हो ना, सोचते थोड़ा फास्ट हो पर लिखने में थोड़ा धीरे करते हो। तो बाबा को सच्चाई से सब कुछ ऑनेस्टली बताना शुरू कर दिया, सच्चाई में स्थित होकर, हमेशा अपने आप को एंजलिक बबल में रखकर फिर उसको सच्चाई से सब कुछ बताना शुरू किया। तो मुझे धीरे धीरे ना जरूरत पड़नी कम हो गई दूसरों से बात करने की, दूसरों से शेयरिंग करने की, है ना। I realize true love makes you independent. True love doesn't make you dependent. And true love आपको अपना जो true loving power है उसको जागृत करता है। तो थोड़ा सा शुरू में आपको एक faith रखें कि बाबा अगर सत्य है, अगर मैंने बाबा को वाकई में पहचाना, तो पहला उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ही इज ट्रूथ। गॉड का पहला इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट थिंग व्हेन यू कम, गॉड इज ट्रूथ, ही विल नॉट टेल अ लाई। तो थोड़ा सा जैसे किसी भी नए फ्रेंड को भी आप चांस तो देते हो ना, तो बाबा को भी चांस तो दो एक बार। इसको फ्रेंडशिप का चांस तो दो, उससे बात करना तो शुरू करो, उसे लिखना तो शुरू करो, उसको सच सच बताना तो शुरू करो। तो बीच बीच में थोड़ी गलतियां भी होती थी, बीच बीच में कभी बोल भी देते थे किसी को कुछ, एंड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उतनी पावर आने लगी कि ठीक है, वो भी मैं बाबा को सच सच बता दूंगी। पर मैं कौन जो सच सच बता रही हूँ बाबा को, अलग होके, साक्षी होकर, कि बाबा मैं आपको साक्षी होके बता रही हूँ कि ये फीलिंग्स आई और मैंने ऐसे पार्ट में आके कुछ बोल दिया उसको। पर मैं आपको सच सच बता रही हूँ। पर उससे क्या होने लगा कि when you are really honest with God from the place of truth that you are, not as Rini, मुझे ये नहीं पता था उस वक्त मैं रीनी के जैसे कनेक्ट नहीं हो रही हूँ, इतना ज्ञान नहीं था उस वक्त, पर इतना पता था कि वो मुझे ना अपने जैसा देख रहा है, मुझे 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 बहुत प्यार करता है, तो मुझे वो ट्रुथ में देख रहा है। जैसे मुरली में सुनते थे ना कि आत्मा शांत है, आत्मा बहुत प्यारी है, और गुस्सा आता भी है तो वो तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम बता दो बाबा को, सच सच बता दो बाबा को, तो आधा पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सुनते तो थे ना हम ज्ञान में ये सब, बाबा को सब कुछ बताते थे हम। हमारे अब हमारे पास एक पूरा कबर्ड है बाबा को डायरी भर भर के लिखी हुई का, हाँ पूरा कबर्ड है, यहीं पे बैठी इसी कमरे में, कुछ भी सब कुछ सबको बताना ही बंद कर दिया। सारा टाइम एक डायरी और पेन साथ में रखती थी, और बाबा को सब कुछ जो जैसे होता था, जो फीलिंग आती किसी को शेयर करने से पहले उसको शेयर करती, और फिर बाबा से पूछती अब आप बताओ आप मुझे कैसे देख रहे हो, तो बाबा बताता बच्ची मैं तुझे ऐसे 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 देख रहा हूँ। तो एक प्यार का कनेक्शन हो गया उससे, एक उससे पता चला कि वो एक्चुअल में प्यार का सागर क्यों कहलाता है, क्योंकि मुझे अपने सत्य में स्थित करके जो झूठ है मेरे अंदर मुझे उससे अलग करता है। किसी ने नहीं किया ऐसे मुझे कभी भी, इतना प्यार। तो उससे Very दूसरे, true, Devi. हाँ जी, Yes, it's beautiful, very true. In fact, this one has also experienced. Uh, um, she is on Spotlight. एक मिनट, स्पॉटलाइट पे ही है यामिनी सिस्टर दीदी। सो आई वाज
व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जो आपने कहा ना, नीड होती थी पहले, ये करें या इसको कॉल करें या उससे पूछें, या वो नीड अब बहुत कम हो गई है, एंड स्टार्टेड लविंग दिस बीइंग इंट्रोवर्ट। तो हम जैसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रूहानी मौज में हम मंडे के मंडे सभी साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, और फिर ट्यूसडे को एक्सपीरियंसेस भी पूछते हैं। तो यही सबने शेयर किया कि नाउ वी स्टार्टेड वेटिंग फॉर मंडे, फ्राइडे तक अब ऐसे लगता है अब दोबारा से वो साइलेंस में जाना है, उस मोड में, बिकॉज वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग गॉड and his company. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you. There is one. So what we going to do? हम ना एक क्वेश्चन ऑडियंस से लेंगे, and then one question from the list that I have. Is that okay? Yeah. Oh, sure. So, oh, Format. Raghav, brother, would you? I'm unmuting you. Would you like to ask your question? शांति जी। ओम शांति। दीदी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आई एम होम बेकर बाय प्रोफेशन and I am very passionate about cooking and serving others and I love to serve others very much. So my question is आवाज it right? आवाज आपको थोड़ी सी आपकी ना वो आ रही है, थोड़ा स्लो बोलोगे, धीरे धीरे। Okay, अभी ठीक है? मे बी हेडफोन्स निकाल कर बोलेंगे तो शायद मफल्ड नहीं होगी। हाँ, हाँ, हेलो, अभी ठीक है? हाँ, मच बेटर। ओके 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 ओम शांति। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ होम बेकर and I love to serve others, love to cook and very very passionate about cooking since childhood. And मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे राइट नाउ आई एम रनिंग अ होम बेकरी थ्रू होम, my baking business. And is it right to start, is it to think of starting think and dream of opening a cafeteria and or a restaurant that I want to do right now as a part at this point of drama where everything is very uncertain and कुछ भी हो सकता है एंड या उससे करेक्टर से मैं अटैच हो रहा हूँ या कैसा कुछ। अच्छा, बाबा हमें कभी मना नहीं करते हैं। बाबा इनफैक्ट बोलते हैं जो भी कर्म करना है करो, बट कर्म के स्थान को भी सेवा स्थान बना दो, right? So even a bakery shop, I know some who are running bakery shops and mithai ki shops bhi, but they're running it with Baba's maryadas. Yeah, and they've literally made it like उसको वहां पे जो भी वो बेक करते हैं, जो बनाते हैं, उसको बाबा का भोग लगाते हैं, उसको दृष्टि बाबा की, और उनको जो भी कस्टमर भी आता है उनको भी बाबा की दृष्टि देते हैं। You know, it's literally become a place of Baba's center. It's kind of that. So it's like you are sharing Baba's love and you're sharing soul to soul love also. And let food be the medium. If that something needs to be done, we are on the karma kshetra. We have to do karma, right? So why not make it a way to serve the souls and bring them close to God? Why not? Yes, absolutely. I think so we can be ambitious, है ना, ambitious कह सकते हैं दीदी, we can be, you know, Ambitious the word nahi use karungi मैं, but okay. we see it as more like let the work happen for the sake of work happening, but make it more like I'm extremely enthralled to let all the souls get connected to God. And work is just a medium and a bahana. वर्क एक बहाना हो गया है ना, कर्म एक बहाना है। तो अब कर्म भी आप जब करेंगे ना, तो वो कर्म भी बड़े खुशी से होगा, आपका कैपेसिटी ही डबल हो जाएगी। राइट। एंड राइट नाउ अभी भी मैं स्टार्टिंग से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी मैं बनाता हूँ जो भी मैं करता हूँ उसको पहले बाबा के आगे ही ऑफर करता हूँ। एंड ये भी मैंने देखा कि आज तक कभी मेरे को ऐसा किसी कस्टमर्स के कंप्लेंट्स नहीं आया। एंड ऑटोमेटिकली मेरे को ज्यादा एफर्ट अपना डालना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बिजनेस वाइज भी फ्लरिश करता जा रहा है। हाँ जी, और वो फ्लरिशिंग की भी खुशी नहीं आएगी, नहीं फ्लरिश करेगा तो दुख भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा इंटेंशन ही कुछ और है। आपका तो पूरा राइट।
उसकी तरफ है, मैं कि बाबा की सेवा अर्थ यहाँ पर हूँ आत्मा, और सर्व आत्माओं को बाबा के पास लाने के लिए मैं निमित्त बना हूँ इस पाठ में, है ना। Right. अब उसमें बेकिंग भी हो रही है, उसमें मिठाई भी बन रही है, उसमें उन आत्माओं को, अशरीरी आत्माओं को, उनके लिए कहाँ ऐसा मौका मिलेगा उन आत्माओं की भगवान का भोग खाने को मिलेगा उनको, हाँ नहीं मिलने वाला है बाहर। तो उनके लिए तो, मेरा हाँ जी, यही विजन है कि अगर रेस्टोरेंट भी ऐसा हो, अगर कुछ खोलना भी है, प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन करना भी है, तो लोग आ रहे सिर्फ खाने के लिए नहीं आ रहे, बट एक सोल सेटिस्फेक्शन उनको मिलने वाला है। इनफैक्ट वो अपने अशरीरी स्थिति को अनुभव करने के लिए आ रहे हैं। यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वाइन, सो मच, काफी काफी क्लैरिटी है, थैंक यू। So beautiful, na? और शरीरी हमारा restaurant will, our food will make you bodiless. New marketing. परफेक्ट, परफेक्ट। A perfect seva. I would say I would love to have this seva, perfect seva to make a shariri. Beautiful. Sister, एक पिंकी जी का है. Can we take her question as well? जी. Okay, पिंकी सिस्टर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. ओम शांति दीदी। हाँ दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैं 3 साल पहले जुड़ी थी बाबा से, तो बस वो ऑन ऑफ था। तो मैंने दोबारा से लास्ट मंथ से मैंने दीदी का वो जो 7 डेज का कोर्स है यूट्यूब पे वो स्टार्ट किया। सो लकीली मुझे कल पता चला कि दी के साथ कनेक्ट होने का चांस मिल रहा है, तो दैट्स रियली ग्रेटफुल फॉर मी। एंड द सेकेंड थिंग, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अपना कुछ भी अब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे एक फेयर आ रहा है। मतलब आई नो दैट कि आई कैन, मतलब पूरा निश्चय मैं बाबा पर करके मैं उस पे कर सकती हूँ। आई नो दैट, और वो होते भी हैं। बहुत काम मेरे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिजल्ट्स हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं पता नहीं, अब कुछ चीजों को लेके मैं थोड़ा शायद कॉन्शियस ज्यादा हो रही हूँ, बट वो एक फेयर वाला इमोशन आ रहा है। सो उसके लिए ऐसा क्या करूँ कि वो फेयर वाला थोड़ा कम रहे या आए ही ना, वो पूरा निश्चय हो जाए। दिस इज माई एक्चुअली क्वेश्चन। आपका ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है ना, वो हमें पूरे ड्रामा का ज्ञान देता है। देखो, हमें ड्रामा के अंदर हायर एनर्जीज भी हैं और लोअर एनर्जीज भी हैं, है ना। सत्व प्रधान संस्कार भी हैं और तमो प्रधान संस्कार भी हैं। सारी वैरायटी, सब कुछ है आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर है सब कुछ, मन के अंदर, राइट। तो कोई भी एनर्जी गुड और बैड माइंड का लेबल है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए। कोई भी एनर्जी गुड और बैड नहीं है, इट्स जस्ट एन एनर्जी। फियर एक सिर्फ एनर्जी है ना। तो हमारा माइंड क्या कर रहा है, अब उसको बैड लेबल लगा के बैठा हुआ है 2500 साल से। और 2500 साल जैसे ही मैं आत्मिक स्वरूप में देखती हूँ, वो 2500 साल 2.5 सेकंड भी नहीं है ना। तो मुझे लगता है ठीक है, फियर की एक एनर्जी है, गुड और बैड लेबल नहीं लगाना है उसके ऊपर, है ना। इट्स जस्ट अ पासिंग एनर्जी। तो मैं आत्मा बाबा के साथ उस फियर की एनर्जी को देखती हूँ, तो साक्षी होकर देखती हूँ बाबा के साथ। तो बाबा से पूछती हूँ, बाबा ये एनर्जी माइंड बॉडी में भी फील हो रही है, तो इसके पीछे ज्यादा स्टोरी तो नहीं देखनी होती, पर कोई अटैचमेंट है तो दिखा दो मुझे। मैं आत्मा आपके पास साक्षी होकर देख रही हूँ उस अटैचमेंट को। तो मान लीजिए कि आई डोंट नो, जो भी फियर है कि हस्बैंड को पता ना चल जाए, या बच्चों को कुछ ना, बच्चों को मम्मी का प्यार फील नहीं हो रहा है, बच्चे आके बोल रहे हैं हमारी मदर तो हमारे को वो पहले जैसा प्यार नहीं करती है। वो सब कुछ भी हो सकता है, हाँ, हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं, हाँ, कि बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मम्मी तो थोड़ी डिटैच हो रही है, या फिर सबको ऐसा आसपास वालों को लगेगा कि बहुत चेंज हो गए हो, क्या है, क्यों इतना फर्क आ रहा है, तो वो डर आएगा अंदर से उसका, है ना। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स जस्ट एन एनर्जी। आप बाबा के साथ साक्षी होकर देखो, बाबा मैं जो कि एकदम साइलेंट आत्मा का नेचर क्या है। सबसे पहले बाबा आपको क्या दिखाता है, आपका अनादि स्वरूप, है ना। आप आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है, फिर तो माइंड की लैंग्वेज है ना। आपके अनादि स्वरूप में आपके पास लैंग्वेज है, भाषा है आपके पास। आप परम धाम में थे तो भाषा थी नहीं, थी ना।
नहीं, बोलना ही नहीं आता है, वहां तो बॉडी नहीं है, थॉट्स ही नहीं, तो संकल्प की भी जरूरत नहीं है ना। तो पहले तो अपने उस अनादि स्वरूप में बाबा के साथ स्थित हो जाओ। बाबा आप कैसे देख रहे हो मुझ आत्मा को? तो बाबा आपको आपका इनकॉर्पोरियल अशरीरी रूप दिखाएगा। बच्ची, तुम्हारे पास ना तो कोई थॉट्स है ना कोई बॉडी है, तुम एकदम साइलेंट हो, एकदम समभाव, इक्वानिमस हो, है ना। उसके बाद अब दिखाएगा बाबा, पर ये जो फियर की फीलिंग आ रही है बच्ची, ये फियर की फीलिंग कुछ नहीं है, तमोप्रधान संस्कार है। कोई अटैचमेंट है नाम रूप से, कि कोई इसको बुरा ना समझे, कोई इसको खराब ना समझे, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम्हारे के पास सत्य क्या है? सर्व आत्माओं के बीच में क्या रिश्ता है? अति इंद्रिय प्रेम और सुख, ये ट्रुथ है बच्ची। देखो अभी भी दूसरी आत्मा तुम्हारी बैठी, एक एक आत्मा परम धाम में, देखो बाबा के पास बैठी है, और तुम भी एकदम बाबा के पास बैठी हो, एकदम। कितना प्यार है तुम सब में। जो मन बोल रहा है वो झूठी कहानी बोल रहा है, सुनना नहीं उसकी बात, वो भाषा तुमको नहीं आती है, उसकी बात नहीं सुनना। जो सच बात है वो देखो, है ना। तो उस बात को देखो जो बाबा दिखा रहा है आपको, इतना प्यार आपस में एक दूसरे के प्रति, बस वो ही सत्य है। बाकी जो भी मन कह रहा है वो बेचारे की आदत है, वो आदत अनुसार बोल रहा है ना। उस मन की अभी आदत पड़ी हुई, तो आप उसको ज्यादा पानी नहीं दोगे ना अपना अटेंशन का, और आप सत्य को अटेंशन को पानी दोगे, जो रियल रिलेशनशिप्स है उनको पानी दोगे, जो बाबा आपको दिखा रहा है, वो फियर अपनी जगह अपने आप जाएगा। उसको ठीक करना, उसको मिटाना, उसको हटाना, ऐसी ये गलती हो जाएगी। उसको हटाना ही नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो सत्य है उसको पानी दो, वो अपने आप ही मर्ज हो जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, पहले फियर आता है, फियर के बाद एक रेजिस्टेंस भी की एनर्जी आती है साथ साथ ही। इसको हटाना है, ये अच्छी नहीं लग रही है, इसको बाबा हटा दो, इसको हटा दो। अरे बाबा नहीं करेगा ये काम। बाबा आपको आपका सत्य स्वरूप दिखा देगा, आपको आपका सत्य रिश्ते दिखा देगा, और वो रिश्तों में कभी भी अंतर एक सूद का नहीं आ सकता। उसमें बह जाओ, उसमें रह जाओ, उसको फील करो। बाकी बाबा जो फीलिंग्स को कैसे देख रहा है, ये तो तमोप्रधान संस्कार है, तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो, बाबा संभालेगा। तुमको हाथ नहीं लगाना है इसको, तुम उसको देखो, सत्य रिश्तों को एंजॉय करो। तो हम तो क्या करते हैं, जिसके प्रति डर भी आ रहा होता है ना कि अरे अभी ये कुछ कह देंगे, तो उस आत्मा को भी बाबा के साथ ही देखते हैं, है ना। बाबा आपके से, बच्ची तुम दोनों भी बहुत बहुत प्यार है, बहुत ही प्यार, पर मन छोड़ो, बहुत बहुत प्यार है। अच्छा, बार बार उसी सत्य को पानी देते रहो, और ये जो इमोशन उसको दबाना नहीं है, बिल्कुल भी दबाना नहीं। ना दबाना है, ना एक्सप्रेस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसको नेचुरली एक्सेप्ट करती है आत्मा अंडरस्टैंडिंग से, और बाबा को गिफ्ट में दे देती है। वैलेंटाइन गिफ्ट ये है हमारा बाबा के लिए, हाँ। तो ये हम हमारी तरफ से, ये बाबा के लविंग जुगनूज हम हैं, और बाबा के लविंग जुगनूज बाबा को यही गिफ्ट देते हैं। बाबा को यही गिफ्ट चाहिए आपसे, हाँ जी दीदी, फियर को अपना नहीं। थैंक यू सो, वही एक्सेप्ट करना है बेसिकली, एंड देन उसके बाद उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज नहीं है, ही एक्सेप्ट, नेचुरल है आप, अच्छा, ओके। नेचुरल। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू, ब्यूटीफुली। दीदी नेक्स्ट दीपिका सिस्टर का क्वेश्चन है। सिस्टर हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे रियलाइज होएगा कि हमारा माया मन बोल रहा है या हम बाबा के साथ आत्मा रियलाइज कर रही है। तो मेरे को लगता है कि जो पिछले क्वेश्चन था थोड़ा थोड़ा उसका आंसर उसी में मिल गया मुझे, है ना। तो आप, बिल्कुल, है ना। तो हाँ। फिर भी मतलब जैसे अब जैसे आपने एक बार बोला था कि हम खुद को वो करने लग जाते हैं, नहीं मैं तो यहाँ गलत हूँ, है ना। कोई सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं कि नहीं मैंने, मेरी गलती तो थी यहाँ पे। तो फिर वही बात है कि हम मतलब कहीं ना कहीं फिर वो जज करने लग जाते हैं खुद को, तो फिर ये माया ही बोल रही होती है। मेरी गलती ना होती है ना किसी और की कभी गलती होती है, हम गलत होते ही नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट है मोमेंट बाय मोमेंट। इसका मीनिंग क्या है?
उस सेकंड में, उस मोमेंट में जो भी किया उस वक्त के अनुसार वो ठीक था। इस सेकंड में शायद मेरी और रिफाइन हो चुकी है अंडरस्टैंडिंग, दैट इज डिफरेंट। एंड बेस्ड ऑन दैट न्यू अंडरस्टैंडिंग इन दिस मोमेंट आई मे एक्ट डिफरेंटली। न पास्ट में मैंने कुछ गलत किया, न सामने वाले ने कुछ गलत किया। इवन इफ मैंने रीनी ने चिल्लाया किसी के ऊपर, ओके, वो उस सेकंड के लिए, उस मोमेंट के लिए वो ठीक था। पर इस सेकंड में मुझे अलग तरीके से देख रही हूं मैं, इस सेकंड में मैं बाबा की नजर से देख रही हूँ। मुझे आत्मा के लिए वो 5 सेकंड ऑलरेडी पास्ट हो गया, वो एक ड्रीम हो गया। मेरे लिए ये मोमेंट में मेरा सत्य है, आई द सोल एम बियॉन्ड माई पार्ट 100%। इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज नॉट लाइक कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मैं अपने आप को फॉरगिव कर रही हूं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं। नो, दैट इज नॉट फॉरगिवनेस, दैट इज सेल्फ ब्लेम। तो क्वेश्चन आता है ना मन में कि अब ड्रामा में अगली बार भी तो गलती होएगी ना। अगली बार और पिछली बार दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आत्मा के लिए ये मोमेंट ऑफ नाउ है अभी। ओके। देखो माइंड कैसे करता है, देख अभी तूने ऐसे किया ना, अब तूने अपनी बात नहीं, गलती नहीं मानी तो वापस आगे जाके ऐसे करी, तो पहले से ही फ्यूचर सिनारियो क्रिएट कर रहा है। ये तो माइंड का गेम है ना। तो हमने तो क्या किया, बाबा के साथ यही तो किया ना। बाबा को साक्षी होके बोला, बाबा मैं आपको आपकी गोद में बैठ के लिख के बता रही हूँ कि ये एक्शन हुआ था, ये ड्रामा पास्ट हो गया, आपको बता दिया, फिनिश। अब इस मोमेंट में मेरा सत्य क्या है बताओ मुझे। मतलब बाबा को हर बात दे देनी है, कुछ हर भी हो, एनीथिंग, छोटी से छोटी सी बात, कोई हर्ट, कोई फेयर, एंगर, एनीथिंग। पेंसिल को इधर से उधर रख दिया, वो नीचे गिर गई, बाबा पेंसिल नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, नीचे गिर गई तो मतलब हर चीज उसको बतानी है ना। हर चीज इतना दीदी कांस्टेंट। छोटे से बेबी बन जाओ और सब कुछ पूरा डिपेंडेंट बाबा पे बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है, कांस्टेंट, है ना। ठीक है दीदी, एक आप वर्ड यूज करते हो ना कि झाड़ मैनिफेस्ट हो रहा है, होता है, तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे प्लीज। आत्मा बीज है और बाबा हमेशा ये बोलते हैं बीज के अंदर झाड़ है ना। और झाड़ क्या है, मेरी सारे पार्ट्स रिकॉर्डेड हैं। ये जिसने समझ लेना ड्रामा के ज्ञान को कि एक एक सेकंड ना मिले दूसरे से और एक एक सेकंड रिकॉर्डेड, तो हम कभी भी अपने पार्ट को ब्लेम एक सेकंड के लिए भी नहीं करेंगे। तो जो हो गया वो हो गया, फिनिश्ड। इस सेकंड में मैं आत्मा कौन, बाबा मुझे इस सेकंड में कैसे देख रहा है, एकदम अनादि स्वरूप में। अब जैसे मैंने अपने आप को अनादि स्वरूप में देखा तो मुझे पूरा झाड़ दिखता है। क्या दिखता है उसमें, सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सारे के सारे संस्कार दिखते हैं, है ना। तो वो सारे संस्कार मैनिफेस्ट हुए अपने अपने टाइम पे। अब संगम युग में मुझे वो सारे संस्कार एक साथ दिख रहे हैं। तो दीदी क्योंकि मैं, सॉरी हाँ जी, सॉरी, मतलब आप जो भी कहते हो हम समझते हैं उन चीजों को, लेकिन उसकी रियलाइजेशन योग से होएगी। योग तो सेकंड सेकंड है बाबा के साथ। योग कोई स्पेशल थोड़े ना बैठ के होता है, वो तो हम ऐसे ही पार्ट प्ले करें ताकि सब कर सके एक साथ ग्रुप में। तो योग तो हर मोमेंट बाबा के साथ आप बातें कर रहे हो, वो योग ही तो है। पापा एक मिनट, योग, नहीं मतलब जैसे ना आप हर चीज को बड़े अच्छे से हमें बताते हो, हम वो चीज अपने आप को नहीं समझा पाते। वो समझ भी रहे हो बात? आत्मा ऑलरेडी इस सेकंड में बाबा के साथ इस संस्कार को भी देखे जो डाउट क्रिएट करता है ना। दीदी आई थिंक व्हाट शी मीन इज जब आपको सुनते हैं तो बहुत इजी प्रैक्टिकल लगता है, बट जब हम करने जाते हैं सिचुएशंस में तो फिर वही ओल्ड। तो शी मेंट कि क्या योग से ये चेंज होगा कि ये संस्कार का, या जो सुन रहे हैं वो जैसे एक स्पिरिचुअलिटी, एक अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, तो वो एप्लीकेशन में योग से आएगा या और सुनने से आएगा? दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट। इट इज बोथ। हम सुनते हुए अप्लाई भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, राइट। योग है ना, हमें योग को भी वर्ड को समझना होगा।
योग माना याद। बाबा क्या बोलते हैं, योग योग शब्द भी मत करो। बाबा क्या वर्ड यूज करते हैं? याद। याद। याद मतलब नेचुरल। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस मतलब मेरा कांस्टेंट कंपेनियन कौन है जिससे मैं सारा टाइम बातें कर रही हूँ अंदर ही अंदर। मैं अपने ही मन से, मैं ऋणी बन के ही अपने ही मन से अपने आप को दोष देते हुए बात कर रही हूँ, या मैं आत्मा बाबा के साथ बातें कर रही हूँ। फिर मन बोलेगा पता नहीं तू बाबा से बात कर रही है कि नहीं कर रही है, अपने आप से ही बात सोच रही, बाबा से बातें कर रही हूँ। डाउट क्रिएट करेगा, है ना, डाउट हाँ क्रिएट जी, करेगा। हाँ, दैट्स ओके। फिर मन बोलेगा देख ये माया मन का थॉट है कि बाबा का थॉट है, ये भी आपका क्वेश्चन था ना। हाँ जी, हाँ जी। सारे ही थॉट्स बिगिनिंग में तो ये सोचो माया मन के ही हैं। ओके। सारे, ऑल थॉट्स माया मन। इवन ज्ञान का भी जो पॉइंट दे रहा है वो माया मन, अच्छा वाला, वो गुड गुड पर्सन वाला माइंड ज्ञान का थॉट दे रहा है हाँ ना। जी। इट्स फाइन। पहले तो सारे के सारे थॉट्स सरेंडर कर दो। अब जो बाबा को बोलो, अब जो जरूरत है वो आप मुझे दे देना। मुझे उसमें मैंपन मेरापन नहीं होगा उस थॉट में, उसमें पर्सनल आइडेंटिटी मिक्स नहीं होगी उस थॉट में। छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे अभी बोला ना इसने आपको कि हम जब सफाई कर रहे थे एक बार, है ना, घर की यहाँ पर, तो कोई आत्मा है जो, सब घर में कितने मेंबर्स होते हैं ना, उस वक्त काफी सारे मेंबर्स थे। तो हम सफाई कर रहे थे तो उन्होंने, हमने कहा आप थोड़ा सा हटेंगे यहाँ से, थोड़ा सा कचरा साफ कर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि अभी डिस्टर्ब मत करो। हाँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो हल्की सी मन में आई थोड़ी सी फीलिंग, मैंने सफाई करने के लिए थोड़ी ना बोला है, मैं कर रही हूँ, मैं तो करने के लिए बोल रही हूँ, करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। थोड़ी सी फीलिंग आई मन के अंदर। हाँ, हम्म, दूसरा ज्ञान का पॉइंट भी आया पीछे पीछे, दूसरा माइंड बोला फील किया ना, फेल हो गई। होता है ऐसे। ऐसे होता है ना, फील किया ना, फेल हो गई। बस हाँ। ये बोलेगी, क्योंकि बाबा से आदत है बात करने की। एकदम बाबा से बोला, बाबा फेल हो गई क्या? तो बाबा ने कहा जस्ट सिट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट बैठ गई मैं, छोड़ के काम, 2 मिनट बैठ गई, काम छोड़ के। व्हाट वाज दिस, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है ना। तो एक मिनट छोड़ के बैठ गई ना। बाबा ने कहा जस्ट ऑब्जर्व दीज फीलिंग्स, जस्ट ऑब्जर्व साइलेंटली। बॉडी में भी फील हो रही थी फीलिंग, वो अंदर से उद्देश्य। एक, में भी अंदर से वो सेंसेशंस आती ना फीलिंग की, वो हाँ फील हो जी। रही थी। ऐसे ऐसे करते करते हमने एकदम रिएक्शन में नहीं आए, मुंह से नहीं बोला उनको, ये अंदर ही थॉट बोल रहे थे, मुंह से नहीं बोला, एकदम चुपचाप 2 मिनट बैठ गई। कुछ कुछ किया नहीं उसके बाद, बस बैठ गई साइलेंटली। बाबा के साथ देख रही थी पूरे इस शो को, माइंड बॉडी के खेल को देख रही थी। अपने आप ही वो 2 मिनट बाद फीलिंग्स शांत हो गई। न मैंने उनको कुछ बोला, न उन्होंने वापस मुझे कुछ बोला, जैसे मैं भूल ही गई वो बात। हम्म। और उसमें से ऐसी एक फीलिंग आई कि ऐसे ऐसे हर एक आत्मा मुझे मदद कर रही है एक्चुअल में। तो उस आत्मा के प्रति एक अनंत प्रेम की अनुभूति हुई मुझे। तब मुझे पता चला कि ये आत्माएं एक्चुअल में मेरी मदद कर रही हैं। अंदर जो इतने मैंने दबा के रखे हैं, सालों साल, जन्मों जन्म, इतने सप्रेस्ड इमोशंस हैं, इनको मुझे इमर्ज करके साक्षी होकर देखने में बाबा के साथ मदद कर रही। अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो मुझे ये मौका कहाँ मिलता, है ना। हमारे जो ऐसे वर्च्यूज हैं वो बाहर ऐसे ही आएंगे। तो मेरा अनलिमिटेड प्रेम करने की शक्ति मुझे महसूस हुई उसमें। ठीक अब है। मैं आई बिकेम हंग्री फॉर सच। अब तो मुझे लगता है मेरे से प्लीज कोई ऐसे करो ताकि मुझे पता मौका चले। मिले कंडीशनल प्यार को एक्सप्रेस करने का। सीरियसली। तो वो थोड़ा सा एक पॉज लेना पड़ता है उसके लिए, मतलब अंदर से खुद को इतना मैं पावरफुल बनाना पड़ेगा, है ना। नहीं,
हूं मैं, वही रियलाइजेशन है ना। वो नहीं, वो मान लो, मन बोलता रहेगा अपनी बातें, मान लो, इस सेकंड में मान लो, अनादि स्वरूप है ना, हो ही हो आप। एक ना ये चलता है मन में कि अमृत वेला नहीं हो पाता, हम एक तो क्वेश्चन एक दो और ले ले अगर इफ यू एक एक लास्ट, बस लास्ट, कि जैसे दिन में तो चलो वी वी आर कनेक्टेड टू बाबा, कर्मातीत है ना, मेरा अमृत वेला नहीं है, नहीं हो पाता, मेरे से उठा नहीं जाता, तो फिर एक गिल्ट आता है उस चीज को लेके। गिल्ट को भी साक्षियों के देख लो, फिर चेकिंग कर लो, उसके बाद साक्षियों के देख ले ना गिल्ट को, उसके बाद चेकिंग कर लो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या मैं जल्दी सोच सुला सकती हूँ शरीर को, ताकि शरीर को जल्दी उठा सकूं, कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं तो उनको कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड एनर्जी ऑफ गिल्ट टू ऑपरेट। डज दैट मेक सेंस? गिल्ट आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर नेचर है, लेट इट बी, बाबा को दे दो। और जिस सेकंड, क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अमृत वेला। अमृत वेला पूरा संगम युग है। जो दिन में जागृत रहेगा वो अपने आप ही अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक कर, जो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर देगा और टाइम से सुलाएगा वो अपने आप ही टाइम से उठेगा। ये सब अपने आप नेचुरली होगा, जबरदस्ती फोर्स से कुछ नहीं हो सकता है ये सब। तो जब आप जागृत हैं, उस वक्त जागृत अवस्था में जितना आप रहेंगे डे टाइम में, ऑटोमेटिकली एक अंदर से फीलिंग आती है कि आई कैन मेक चेंजेस इन माई लाइफ स्टाइल एक्चुअली। दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर योगा पावर बोलो, याद पावर बोलो, ये सब ऑटोमेटिक, जबरदस्ती थोपी भी चीज कभी भी नहीं कर सकेंगे आप। हाँ जी। इस कभी नहीं किया ऐसे, मुझ में थोपेंगे तो मैं नहीं कर सकती। मैं अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बाबा का साथ महसूस हो रहा है, प्यार महसूस हो रहा है, तो वो नेचुरली हो रहा है, तो वो होता है, नहीं तो नहीं होता है पार्ट में, है ना। हाँ जी। ओके सिस्टर, अभी हम आदित्य का लेंगे। ब्रदर, हम काफी देर से उनका हैंड है, आई एम अनम्यूटिंग यू। Om Shanti Didi. Am I audible? Yes, very audible. Yes, Didi. Didi, I am a youth, and my question is that being a youth, Didi, we all have a desire of getting name, fame, money, designation, well known. So, Didi, and I read what Murli every day. So, Baba says, Didi, be detached from your karma, whatever you do, which Baba says karma titavastha. So I want to ask Didi, what is the real meaning of karma titavastha? And should we don't, is it my greed, Didi, to have that desires of getting name, fame, money and all? Is it my greed or is it natural? हमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद बाबा को ये इसीलिए हमें बताते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है, इसलिए ताकि हम किसी भी चीज को गंदा और अच्छे की कैटेगरी से पहले बाहर निकाल देते हैं, है ना। Yes. फेम की इच्छा, ये सारी इच्छाएं हैं हम सब आत्माओं के मन के अंदर, है ना। एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, सत्युग में इच्छा मात्रम अविद्या, वहां तो पता भी नहीं होगा तुम। संगम युग में तुम्हें ये ब्राह्मण आत्मा को पता है कि तुम इच्छा मात्रम अविद्या हो, तुम्हें ये नॉलेज भी है और तुम्हें सारी इच्छाओं की भी नॉलेज है। Yes. ये सिर्फ संगम युग में पॉसिबल है ना। तो संगम युग में जब मुझे ये पता है कि मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूं, पर मन के अंदर इच्छाएं हो सकती है, तो जितना मैं अपने इस ट्रूथ पे ज्यादा अटेंशन दूंगी इन इच्छाओं को खत्म करने की बजाय, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर, आई शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक दिस, हम इन सारे संकल्पों से आज से साक्षी आएंगे। ये आई शुड नॉट बी बोलता रहेगा मन, शुड नॉट बी से हम आई एम दिस, है ना। तो आने दें, जाने दें, ये बाबा के पास जाने दें। नेम फेम की इच्छा है, ये आपका ट्रुथ नहीं है, किसके बिहाफ पे है ये नेम फेम की इच्छा? That is, Didi, according to what body consciousness. No, it's just a thought. It's simply just a thought.
इट्स रियली नथिंग मोर देन अ थॉट। पर जैसे ही उस थॉट के आगे मैंने लगाया ये मैं हूं, आई एम थिंकिंग दिस थॉट इज मी, तो फिर वो आइडेंटिटी बन गई। मैं बॉडी के साथ अटैच होके मैं आदित्य हूं और ये मेरी सोच है। Yeah, exactly. हाँ, बट दिस इज नॉट यू, दिस इज जस्ट अ थॉट। सो बाबा हमको एक्चुअल में संकल्प स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप में जगा रहे हैं और संकल्पों से साक्षी कर रहे हैं। तो ये थॉट्स आते भी हैं ना, नेम फेम, डोंट पर्सनलाइज देम एंड ओन देम एज यू। नो योर ट्रूथ इज बियॉन्ड इट, बियॉन्ड द थिंकिंग माइंड, है ना। Yeah, हमें उसको नहीं मिटाना है, हमें उसको नहीं हटाना है, कुछ भी नहीं। अपने ट्रुथ में पहले मैं कौन, जिसके अंदर ये संकल्प भी चल रहा है, ये भी एक अनुभव है। साक्षी होके उस डिजायर वाले अनुभव को भी साक्षी होकर देखें। ये आपका ट्रुथ नहीं है, पर ये इस सेकंड का ये अनुभव है। इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा ने बाबा की गोद में बैठकर इच्छा के अनुभव को देखा, ओके, देखा और बाबा को समर्पित। yes, बाबा Didi. मेरी क्या है, हाईएस्ट इच्छा। एंड एक ड्रामा का सीक्रेट बताएं, जो जितना इच्छा मात्रम अविद्या होता है ना, आत्मा की इच्छा ही नहीं होती है, वो ज्यादा मिलता है उसको। हम्म, Yes, Didi. चाहिए तो ये तो पीछे पीछे। बहुत खतरनाक है, ऐसे नहीं होती थी फिर माया आ जाएगी। पर उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं। हाँ, ये अपना, मैं अपना एग्जाम्पल भी नहीं क्या दूं, पर मुझे ये लगता है, मुझे ये चीज से बिल्कुल ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई कुछ भी, कभी भी इच्छा नहीं रखी। और अभी भी कभी भी इच्छा नहीं आती नाम मान शान की, ना मुझे चाहिए नाम मान शान कभी भी। मुझे लगता है फालतू में कहाँ बिठा दिया मुझे। हाँ, मैं तो अच्छा खासा गुप्त अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये कहाँ मुझे बीच में यहाँ बिठा दिया इसमें। हाँ, इच्छा ही नहीं है, और इसलिए आई भी, आती भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस दिन चली भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेम्पररी चीजें बहुत टेम्पररी होती है। तो जो आत्मा ज्ञानी होती है ना, उसका इसका टेम्पररी नेचर पता होता है, तो न तो वो आता है तब उसमें फंसती है, न जाता है तो उसमें रोती है। Thank you. Yes. And Didi, one more question, Didi, that in my family, I am the only who knows this Gyan, Didi. So I hide it from everyone. And that I don't want to tell them that I am in Gyan or I am spiritually inclined. But because they will think differently. Ki, yeah, this is not your age. You are so small. At this age, you should not do that. So I hide it. So is it my good sanskar, or should I what be openly? Ki, yeah, this is what I want to do and this attracts me. Um, That's why not? Why not tell them? But with soul conscious attitude. Don't expect them to accept you. yes, जरूरी नहीं कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है ना, बिल्कुल राइट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, but गलत नहीं है। this is what I want to do something. This हाँ, this this really fascinates me, Didi. होती है इसलिए मैं करता हूँ, एंड रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना। They're like, this is not your age of what getting into spirituality. प्रॉब्लम, दे आर राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आप अपना करते रहें, छुपाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, हम जब छुपाते हैं ना, तो हम फियर के, झूठ के संस्कार को और ज्यादा फीड कर रहे होते हैं, है ना, Yes, और ज्यादा फीड कर रहे होते हैं। तो हमें फीड नहीं करना है इसको, है ना। तो हिम्मत बाबा के साथ एकदम, बहुत आपको जब अंदर से ये पावर है ना कि आई हैव द पावर टू लव ऑल, रिगार्डलेस वेदर दे लाइक मी, दे डोंट लाइक माई पार्ट, दे लाइक माई पार्ट, आई हैव द पावर टू लव ऑल एंड बी कंटेंटेड विद बाबा, कंप्लीटली संतुष्ट विद बाबा। फिर वो मैंने बताने के बाद वो मुझे 10 सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरे तरफ से उनको सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा, yes. डर नहीं लगेगा आपको। Thank you. And थैंक the यू। last question, last, yes.
one more, Didi, one more. Didi, just Didi, before coming to Gyan, Didi, just because of environment and surrounding, what I was in love with someone. Okay, so Didi, is it a scene? Is it? Uh, did I make a sin that I think now I regret? I guilt for that. Okay, why was all before हम सबकी लाइफ में पार्ट्स डिफरेंट हैं, राइट? हमने तो पार्ट में शादी भी की हुई ना, तो कोई सिन थोड़े ना है, वो तो किया हुआ था पार्ट, सिन नहीं है ना? पर अब अगर ज्ञान में आने के बाद अंडरस्टैंडिंग मिली है मुझे कि व्हाट इज, हु एम आई, राइट? अब मैं आत्मा लिविंग लाइट हूँ, अब मुझे बाबा का ज्ञान मिला है ना? तो वो पार्ट में जो पास्ट था वो पास्ट हो गया, फिनिश्ड, वहीं पे खत्म, है ना? अब इस मोमेंट में मेरा ट्रुथ क्या है? मैं एक लिविंग लाइट हूँ, जेंडरलेस बॉडीलेस आत्मा हूँ, राइट? इसलिए अब मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना? एक जेंडरलेस बॉडीलेस लाइट को क्या इंटरेस्ट होगा, है ना? और कोई अगर मन में बात आ भी जाती है तो बाबा को साक्षी होके दे दो, है ना? सिन होता है जब मैं आत्मा उस थॉट से अपनी आइडेंटिटी बनाकर उसको फिर सप्रेस करती हूँ, सप्रेस या फिर एक्सप्रेस करती हूँ, अपनी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग के ऑपोजिशन में जब मैं जाती हूँ, उसको बाबा बोलते हैं सिन। और सिन मतलब ये नहीं कि कोई, सिन का मीनिंग है टू बिलीव योरसेल्फ टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, yes, exactly. दैट इज सिन, है ना? Thank you so much, Didi. Thank you, Didi. Didi, how much time do we have? अभी टाइम क्या हुआ है? दीदी यहाँ तो 11:30 हुए हैं. We can take 15 more minutes if Okay, that's sure. So Mahinder brother का काफी टाइम से hand raise है, so I'm unmuting him. Mahinder, आप ओम शांति दी, आवाज आ रही है दीदी? दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि दीदी जब से मैं स्टार्टिंग से जैसे स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ तो मैंने शिवानी दीदी को बहुत सुना है, और उनकी एक वो लाइन होती है कि योर क्रिएटर ऑफ योर एवरी थॉट फीलिंग। तो वो जो वो कहते हैं, मतलब वो मेरे अंदर ये सबकॉन्शियस के अंदर चला गया है कि जो मैं थॉट क्रिएट करता हूँ वही मैं फील करूंगा। तो वो दीदी बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ नेगेटिव थॉट आती है तो तुम उसे पॉजिटिव से मतलब क्या बोलते हैं रिप्लेस कर दो। और जो अब हम ये ज्ञान सुन रहे हैं इसमें आप कहते हो कि हम तो माइंड से बियॉन्ड है, और हम तो वो फीलिंग है ही नहीं, हम तो मतलब लाइट है, बीइंग है, और हम सब इससे डिटैच्ड है, ये हमारे रोल्स है। तो और मैंने दीदी को है ना वो ब्राह्मण क्लास में भी सुना है कि हमारे हर संकल्प बाबा की जो मुरली होती है, तो हमारे संकल्प वही होने चाहिए जो बाबा ने मुरली में कहे। तो दीदी इसे कैसे मतलब कैसे समझे? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सबसे पहले कि हम क्रिएटर का पार्ट थोड़ा बाद में लेंगे, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो भी थॉट्स अभी स्क्रिप्ट से आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड माइंड से, राइट? स्क्रिप्टेड माइंड के जो थॉट्स आ रहे हैं, आई एम नॉट क्रिएटिंग, दे आर पार्ट ऑफ द ड्रामा, राइट? दैट्स व्हाट बाबा सेज कि ड्रामा प्री रिकॉर्डेड है, राइट? ड्रामा किस फॉर्म में प्री रिकॉर्डेड है? संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। संस्कार किस फॉर्म में हमारे सामने आते हैं? मोमेंट बाय मोमेंट थॉट्स के रूप में सामने आते हैं, राइट? तो जो भी स्क्रिप्टेड माइंड से जो भी थॉट्स आ रहे हैं, दे आर स्पॉन्टेनियसली हैपनिंग, आई एम नॉट क्रिएटिंग दोज थॉट्स, ठीक है ना? अब जो शिवानी दीदी जो बोल रहे हैं क्रिएटर ऑफ थॉट्स है, वो एक अलग स्टेप है। तो वो जो थॉट्स स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, पर अब जो आया है वो बाबा के पास हमने सरेंडर कर दिया है, राइट? उसके बाद जब मैं बाबा से जो थॉट ले रही हूं वो मेरा और मैंपन नहीं है उसमें, पर उस थॉट को लेकर मैंने बाबा के उसको अपनी अटेंशन दी और अपना पावर दिया। जब बाबा के थॉट को मैंने अटेंशन और पावर दिया तो वो थॉट एक्शन में भी आया, वर्ड्स में भी आया, और उसको मैंने मेरा न्यू संस्कार जो बाबा का संस्कार है वो मुझे मेरा नेचुरल लगने लगा, राइट? तो जब वो क्रिएटर कहने का मतलब है उनका, जो मैंने समझा है उनसे, इसने भी ज्ञान उन्हीं के थ्रू लिया है बाबा से, इसने जो समझा था कि जो आ रहे हैं स्क्रिप्टेड माइंड से वो मेरे नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं,
पर जो मैं बाबा से ले रही हूँ उस थॉट को मैं और मेरापन नहीं है, वो मैंने बाबा से लिया, उसको अपनी जान दी, अपनी पहचान दी, अपना पावर ऑफ बिलीफ दिया, अपना पावर ऑफ अटेंशन दिया, तो उसको वो बोलती हैं तुम क्रिएटर हो उस थॉट के, है ना। क्योंकि उस थॉट से फिर मैंने आत्मा ने, थॉटलेस आत्मा ने उस थॉट को जान दी, और उस थॉट को जान देकर उससे नई सृष्टि आ रही, क्योंकि वो थॉट क्रिएशन हुआ ना, उससे मेरा एक्शन क्रिएट हुआ। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बीइंग द क्रिएटर ऑफ योर थॉट. That is what I understood and that is what I have seen. Does that make sense? Does that make sense, Mahinder brother? हाँ दीदी, दीदी समझ आया, क्योंकि वो कंफ्यूजन है ना मेरे अंदर की है ना, मतलब दीदी ऐसे कहते हैं तो मे भी मैंने उसका मीनिंग सही तरीके से नहीं समझा। मतलब क्रिएटर माना क्या, जो हम जैसे ऑटोमेटिक कोई भी थॉट आ रही है वो आप बोल रहे हो स्क्रिप्टेड माइंड है, और जो हमें पता है कि हम नहीं है और हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, कहने का मतलब अपने ट्रू नेचर में वो क्रिएट करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो है इट्स लाइक क्रिएटर ऑफ योर थॉट, मतलब हम इंचार्ज हो जाते हैं जो हमें ट्रू नेचर में फील फील करना चाहिए। हाँ, मतलब हमने बाबा से लिया है ना वो थॉट, जब वो बोल रहे हैं मुरली का थॉट है। अब मुरली का मन भी दे सकता है और बाबा भी दे सकता है। जब बाबा दे रहा है तो मुझे नेचुरली अपना फील होगा, क्योंकि इसमें मैं और मेरापन ऋणी भान का नहीं होगा उस थॉट में। उसमें पर्सनालिटी ऑफ पर्सन आइडेंटिटी नहीं होगी उस थॉट में। ऐसा लगेगा कि ये बाबा का दिया हुआ है, नथिंग बिलोंग्स टू मी, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो उस थॉट में एरोगेंस नहीं होगी और उस थॉट में बीटिंग अप भी नहीं होगा। जैसे हमने बोला ना, वो फील हो गए, फेल हो गया, कैसे बोलता है मन पीछे पीछे। जैसे एक बार इसको बाबा ने ये भी थॉट दिया था कि बाबा ने एक मुरली में बोला कि हम तो किसी को फॉरगिव नहीं करता हूँ। बाबा ने ऐसे बोला, तो मैंने कहा आप फॉरगिव नहीं करते हो तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो मैं फॉरगिव करूं किसी को भी। तो ऐसे ही आत्मा बाबा से बातें कर रही है कि, और ये माइंड ही बोल रहा है बाबा से आप फॉरगिव नहीं करते तो मैं कैसे करूं। मैं आत्मा उस थॉट को भी देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि कैसे ये थॉट मुझे वाइंड अप करना चाह रहा है, मुझे साइलेंट बीइंग को वाइंड अप करना चाह रहा है। हाँ, मैं ये भी देख रही हूँ। फिर बाबा से एक थॉट आई कि बच्चे मैं इसलिए फॉरगिव नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ तुम्हारे अगेंस्ट पकड़ता ही नहीं हूं। मैं पकड़ूं तो फॉरगिव करूं ना। तो ऐसे ही तुम आत्मा जब किसी के अगेंस्ट कुछ पकड़ोगी ही नहीं तो फॉरगिव करने की कहां जरूरत है। लेट गो करना पड़ता है जब कुछ पकड़ा हो। तो वो एकदम क्लियरली फील होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ थॉट फ्रॉम गॉड। मेरा तो दिमाग इतना नहीं चलता इस पार्ट का। तो वो एकदम से लगा कि यस इट इज अ टचिंग फ्रॉम बाबा। बाबा नेवर होल्ड्स एनीथिंग अगेंस्ट एनी सोल एवर, बिकॉज ही नोज हर एक का पार्ट फिक्स्ड है। तो मैं आत्मा भी किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं पकड़ती, अपने भी अगेंस्ट कुछ नहीं पकड़ती, क्योंकि मेरा भी पार्ट फिक्स्ड है। तो मुझे लेट गो करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इज नथिंग आई एम होल्डिंग अगेंस्ट एनीबडी, है ना। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो वो फिर क्रिएटिव हो गई ना मैं थॉट की, क्योंकि बाबा के थॉट को मैंने लिया और उसको जान दी, उसको एक्शन में भी लाया, तो फिर उसमें वो पावर होती है उस थॉट में। दैट इज व्हाट शी इज मीनिंग, गॉड की And पावर होती एक बारी सिस्टर आपकी क्लास में शायद सुना था, आपने कहा था वो थॉट बाबा का है जो कभी चेंज नहीं होगा, जो सबके लिए एक जैसा होगा, which will not change। आज वो valid है पर कल and if this is Maya one mind, this will keep changing, keep switching। So I है। think वो thoughts हमारे नहीं है। और I think when we say creator, तो it's like that consciously हम उसको attention दे रहे हैं। So those that means that we, because क्रिएट तो सारे ही हो रहे हैं ना, आत्मा से ही तो सारे थॉट्स आ रहे हैं दीदी, चाहे पुराने भी हैं चाहे नए भी हैं। बट द थॉट्स दैट आई एम फीडिंग, आई एम गिविंग माई बिलीफ, माई अटेंशन, दोज आर द थॉट्स दैट आई एम मैनिफेस्टिंग। या, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल।
we'll take now मैंने Prisha. ये पुराने थॉट सारे ना वो हम क्रिएट नहीं कर रहे, बिकॉज द Yes. मोमेंट क्रिएटर ऑफ द ओल्ड माइंड, then it is difficult to step out of it. Right. True. Right. Okay. Prisha Gajwani, sister, I'm unmuting you. You can ask your question. Om Shanti Awaaz? Ritika. Am I audible? Yes. रिनी बहन, मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि ये हमें साक्षी होके अपने पार्ट को देखना है, तो वन थिंग इज दैट कि एक्टर कॉन्शियस होके मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, एंड वी स्टे इन दैट स्टेट, एज वेल एज जब कैरेक्टर कॉन्शियस जब पार्ट में आते हैं तो कुछ उसमें ऊपर नीचे हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तो दैट वी आर एबल टू लाइक डिटैच होकर देख पा रहे हैं, लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली. ठीक है, समटाइम्स डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, बिकॉज हम सोचते हैं ना हम डेली मुरली सुन रहे हैं, इतना हम डेली जाते हैं और फिर मैंने ऐसा कैसे कर दिया. बट देन वो कहीं ना कहीं बाबा मदद करता है उसको साक्षी होके देखने में, तो वो इजी हो जाता है. वो ठीक है. उस पे मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूंगी तो आप यही कहोगे कि विथ प्रैक्टिस, लाइक जितना आप हर सेकंड बाबा से कंबाइंड रहोगे, जितना आप अपने स्वधर्म में शांत में रहोगे, उतना ही आप मतलब समझ पाओगे, साक्षी होके देख पाओगे. बट माय क्वेश्चन इज कि ड्रीम्स का क्या करें? ड्रीम्स भी कुछ कभी ऐसे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस वाले नहीं होते हैं और वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं. उसमें हम खुद को क्या समझाएं? कुछ समझाना नहीं, ये भी ड्रीम तो रियलिस्टिक ही है ना. ये भी ड्रीम रियलिटी ही है, अपने आप को पर्सन समझना है ना. टू बिलीव माई सेल्फ टू बी, आपके क्या है नाम शरीर का? प्रिशा. प्रीशा. प्रीशा. अपने आप को प्रीशा समझना या अपने आप को रिनी समझना, ये भी एक ड्रीम रियलिटी है माइंड में, है ना. तो पहले हमको अपने जागृत अवस्था में इस ड्रीम रियलिटी से बाहर रहना है. तो वो ड्रीम की क्वालिटी जब ठीक होनी होगी अपने आप होगी. पे अटेंशन टू योर कॉन्शियस मोमेंट्स. तो जो meanwhile pay attention to your conscious moments. Don't worry about the dreams in the dream world only, है ना. ड्रीम के अंदर जो ड्रीम आ रहा है, don't worry about that. More important is that when I, the being, am in my waking hours of the body, I am out of this unlimited dream, है ना. Yes, that is very beautiful. Then, but again, with that comes the responsibility of being an act. I'm an actor, so I have to, I'm equally. I want to do justice to my part. Like ये शाहरुख खान है, तो अगर वो कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो उसको जस्टिस करता है ना. तो हम ना सॉरी, Who is the actor? फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, if he is playing a certain role, I got that, but who he is the would. Sorry, who is the actor here? the soul. The soul is the actor, right? Soul Yeah. doesn't do any justice to anything. It's all pre-scripted. You're doing nothing. Okay. So then we need to. We need not do the action like whatever is required for the script to. Responsibility and our most important attention is who am I and who am I with? You know, I, the being, with Baba, in every scene of the drama, in every situation of the drama, I pay attention to me, Baba, and what is the reaction of my mind inside? What is my mind doing in response to the outside situation? That is my only responsibility and only attention. And only from there can you truly play your part as Baba wants you to play. And then if we have done something, like you said, we have to write it down and give it to Baba. After paying all that attention, if something still happens, okay, उस वक्त बाबा को लिख दें, है ना. वो सीन आपके लिए पास्ट हो चुका है, वो सेकंड आपके लिए पास्ट हो चुका है. अब मैं आत्मा बाबा के साथ, बहुत सीन के बारे में नहीं लिखना है. इतना लिख सकते हैं कि बाबा को, कि बाबा ये पार्ट में ऐसा हुआ और इस पार्ट में मुझे ये दिखा, मोह का संस्कार या जो भी संस्कार दिखा.
मैं आत्मा जो कि संस्कारों से परे वाली आत्मा हूँ, आपको सरेंडर कर रही हूँ। अब आप मुझे बताएं आपका संस्कार क्या है। मैं इनविजिबल जो एक्टर हूँ, इनकॉर्पोरियल एक्टर हूँ, मैं उस संस्कार को एब्जॉर्ब करती हूँ, उस संस्कार को अपना बनाती हूँ, उस संस्कार को अपना पावर ऑफ बिलीफ देती हूँ, उस संस्कार को अपनी आइडेंटिटी दूंगी मैं, आत्मा। And we need to accept it, whatever the drama, Bindi. We need to accept it, no? That I have done this. See, acceptance can never be done. You can never do acceptance. Acceptance comes naturally from the place of being. अगर doing है acceptance में, तो अभी तक mind ही कर रहा है acceptance का भी part play. मुझे accept करना चाहिए, मुझे accept करना, अभी तक mind ही बोल रहा है. So basically, neither good nor bad. Absolutely. You are free from the duality of the mind, and natural nature of the soul is acceptance and patience. There's no doing in it. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you. We'll take just last question, Didi. Twinkle Basin, and then we will wrap up. Twinkle sister, मैं आपको unmute कर रही हूँ. आप अपना question पूछ सकते हैं. Om Shanti ji. I'm audible? Audible? Om Shanti ji. हाँ जी. जी मेरा बेटा ना 12th में है, तो उसकी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम, जो हमें लास्ट ईयर जुलाई में डायग्नोज हुई है। तो वो डॉक्टर्स ने हमें बोला इसको स्टेरॉइड्स लो, सिंपली उसका है कि वो स्टेरॉइड्स से ही कंट्रोल होगा, बट वी आर नॉट रेडी टू गिव। तो हमने उसका जो ट्रीटमेंट कराया, एक्चुअली उसे ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे उसे कभी कोई हम शॉक या कोई भी ऐसे उसको हाइपर हो जाए किस चीज से, उसका ना राइट हैंड ना वो थोड़ा वर्क नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग राइट हैंड से ही हुई थी। तो राइट साइड उसकी आई ब्लरनेस आ गई थी। एक्चुअली डॉक्टर्स ने एमएस डिजीज बोला उसे। तो हमें दिल्ली में डॉक्टर ने बोला कि आप इसका 12th ड्रॉप करवा दो, कि जितना स्ट्रेस होगा इसकी और कोई ना कोई चीज पे इफेक्ट करेगा। तो ही सेड कि नो मैं कर लूंगा 12th, बट ही इज डूइंग। बट नाउ यस्टरडे ना मैम, वो जब आया दीदी वहां से ट्यूशन से, तो ही वॉज रियली अपसेट कि वो रोया बहुत आके। उसकी टीचर ने मुझे ये बोला कि इसने स्टडी नहीं की। वो कहता मम्मा एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने नहीं किया, मैम ने मेरा रजिस्टर भी खोल के नहीं देखा और सीधा मेरे पे स्टार्ट हो गई काफी बच्चों के बीच में। फिर उन्होंने मैम ने मुझे भी कॉल करके मुझसे स्पीकर पे बात की और काफी इंसल्ट किया। तो वो उसने वहां रिएक्ट, उसने इस वो घर आके वो मेरे को मैम दीदी सिर्फ एक चीज चुभ रही है कि वो इतना बड़ा 12th का बच्चा, वो घर आके बहुत रोया था। वो उसने बाद में बोला कि मम्मा मेरा हाथ राइट वाला बहुत शिवरिंग कर रहा है हैंड, कि एग्जाम्स में मैं कैसे क्लियर करूंगा, आई डोंट नो। मेन प्रॉब्लम है दीदी उसकी अकाउंट्स की, बाकी तो वो सब कर रहा है, बट वो अकाउंट्स में थोड़ा डाउट उसको हो रहा है, थोड़ा मुझे भी डाउट हो रहा है। तो मैंने आज सुबह अपने हस्बैंड को ये बोला कि हम प्रिंसिपल मैम से अपने बेटे का बात करके बेटे की 12th ड्रॉप करवा दे। इज इट अ राइट डिसीजन कि उसकी 12th स्टॉप करवा दे, कि वो आगे करे खुद? क्योंकि वो मैम ना उसको बार बार बोल रही थी यू डोंट डिजर्व कॉमर्स, यू व्हाई डोंट यू टेक द आर्ट्स, तुमने अपने पापा के बिजनेस के अकॉर्डिंग ये ले लिया दिखावे के लिए, ऐसे तुम अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, यू कांट बी डू दिस, तुम अगर बाय चांस कंपार्टमेंट आती तो तुम कैसे क्लियर होगा। वो ना चीज को वो बहुत ज्यादा उसने कल टीचर ने बोला। तो आज वो उसने मुझे यही बोला मेरे बेटे ने कि मम्मा आई विल गो टू ट्यूशन, मैंने सिर्फ अकाउंट्स के लिए जाना है। घर पे भी वो लैपटॉप पे कर रहा है, वो पढ़ता है। फिर मेरी कजन है उससे भी कर रहा है बात। बट थोड़ा सा मेरे को मैम दीदी डाउटफुल हो रहा है कि मैं अब ये डिसीजन लूं कि ना लूं। प्रिंसिपल मैम से हम बात करें कि इसको ड्रॉप करवा दें 12th। डिसीजंस तो राइट स्मृति से ही आएंगे। राइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले मेरी स्मृति क्या है। राइट हमें ये जो इमेजिनरी खेल चल रहा है हमारे माइंड में, वो रियलिटी लग रहा है क्या? उसकी बीमारी आपको ठीक है, जो फिजिकल लेवल पे करना है वो करें, नो प्रॉब्लम, वी नीड टू डू व्हाट द लेवल ऑफ द ड्रामा, वो करें। पर मेरी दृष्टि उस आत्मा के प्रति क्या है? क्योंकि वो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, तो इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं आत्मा, उस आत्मा को
उसके स्मृति में देखूंगी, ओरिजिनल स्मृति में बाबा के साथ, है ना, उसके शक्तिशाली नेचर को देखूंगी, शक्तिशाली पावरफुल स्मृति को। अपना ही एग्जाम्पल देगी, जैसे है ना पार्ट में जो भी हर एक, आई एम श्योर एवरी मदर टुडे गोज थ्रू दिस, इट्स लाइक मोर और लेस, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, पर कोई ना कोई हर मदर इस रोल के थ्रू जाती है, पार्ट में जो भी प्ले कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल ये बात तो है। हाँ जी, इसने एक ही चीज देखी पार्ट में, फिजिकल लेवल पे डू व्हाट यू नीड टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्ले, या, बट एट द लेवल ऑफ स्मृति नेवर सी द सोल एज वीक, सोल इज दीदी वो तो अंदर से वो तो स्ट्रांगली बोल रहा है कि मम्मा मैं कर लूंगा। नहीं, वो क्या बोल रहा है वो तो अलग बात है, आपकी क्या स्मृति है उसके प्रति, और मेरा भय, दिल भय के ऊपर बेस्ड हम डिसीजन ले रहे हैं, वो भी चेक करना है, तो चेकिंग अपनी करनी होगी सारी, है ना। ठीक तो पहले ये करनी है कि ये डर लग रहा है, इसको कुछ हो ना जाए, राइट, उस डर के बेसिस पे कर रहे हैं ना, बट द बेस्ट थिंग, firstly at the physical level you can always communicate with the teacher may not even be aware. At the level of the drama you can always speak to the teacher, not principal but just directly to the teacher, shikayat nahi karni hai but directly to the teacher you can speak at the physical level, because मैम she may not. दीदी शी नोज टीचर नोज अबाउट हिम कि ये प्रॉब्लम है। इवन प्रिंसिपल मैम शी इज रियली कोऑपरेटिव। उन्होंने काफी उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट कि ये बहुत ज्यादा ले मार्क्स। आई जस्ट वांट कि ये क्लियर कर ले कि बिकॉज मेरे बेटे का राइट हैंड है, वो राइट हैंड वो 3 आवर्स के लिए वो उस चीज के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है कि 3 आवर्स में मैं अपना अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट कर लूं। आई जस्ट वांट टू क्लियर अकाउंट्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को लेके ही इज श्योर कि मम्मा आई विल डू। बट जैसे कल मैम ने उसको ट्रीट किया और जैसे उन्होंने वो घर आके इसलिए रोए कि मेरी मम्मा की इंसल्ट की, वो मैम ने सब बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा रूडली बोला। आई सेड इट्स ओके, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो आप एक बार ये अंडरस्टैंड करें दीदी क्या कह रहे हैं। दीदी कह रहे हैं आपको उसको रोल से बाहर, नॉट एज अ सन, है ना, आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप उसको एज अ सोल देखेंगे। ठीक है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, ये एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है जो आपको करना, और उससे फिर आप खुद डिसीजन ले पाएंगे, है ना। क्योंकि दीदी या मैं या कोई भी या भगवान भी हमें नहीं बता सकता, वो आपके अंदर से आएगा, बट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियरलेसनेस, राइट दीदी। समझ गई मैं बात आपकी। हाँ जी। अटेंशन रखना होगा, वो क्या करना चाहता है दैट्स वंडरफुल, बट आपकी स्मृति क्या है ना। फिर आप अपनी स्मृति में अगर देखेंगे कहीं ना कहीं फियर है ना। ड्रामा इज फिक्स्ड, वी कांट चेंज एनीथिंग, वी कैन ओनली चेंज आवर स्मृति। हाँ, तो आप जब अपनी राइट स्मृति में रहकर कुछ भी डिसीजन लेंगे ना, वो राइट ही डिसीजन होगा, उसमें चाहे वो आउटकम आपके पार्ट के अनुसार, आपकी पार्ट की जो इच्छा है ना हो, the outcome may be totally the opposite of what your part as a mother may want, but that is fixed in the drama. Don't let the fear guide your decisions, let your smriti and the truth guide the decisions that you make, that is all. Yeah. क्यों दीदी, नानू भूतिया है, बस एक उनका लास्ट ले सकते हैं, शी इज रिक्वेस्टेड मी, सो सॉरी दीदी। आपके वहाँ क्या टाइम हो रहा है? 10:25 है, 5 मिनट कर सकते हैं। ओके ओके नानू जी, वी वोंट बी एबल टू टेक मोर क्वेश्चंस, थैंक यू एवरीवन। Om Shanti Didi. Didi, you are telling us to write everything to Baba, no? When you have any emotional pain or anxiety, anything, no? And while writing to Baba, no, can we use like words like today I'm not feeling well, or I am emotionally weak, like something, no? Sister Shivani used to tell us, no, don't use like negative words like I am tired, like I am helpless. So to writing to Baba, to write to Baba, can we use like this, like today I'm emotionally weak, Baba, what to do, like that we can write? Can we write like that? The thing is, अगर मैं ऐसे आत्मा की अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वीक माइंड के अंदर है,
तो मैं आत्मा भी बाबा से कनेक्ट ही नहीं हो रही एक्चुअली, है ना, क्योंकि माई सेंस ऑफ सेल्फ इज जस्ट विद आई एम वीकनेस, आई एम द इमोशन। मैं आत्मा संकल्प और इमोशन का स्वरूप बनकर फिर बाबा से बात करूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू कैच हिज टचिंग्स, या पर अगर मुझे उससे कैच करना, उससे कनेक्ट होना, उसकी फ्रीक्वेंसी में मुझे भी अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी में रहकर उससे बात करनी होगी, राइट? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? यू आर अ परफेक्ट बॉडीलेस थॉटलेस बीइंग ऑफ लाइट। आप थॉट का भी संकल्प नहीं पहन सकते, आप इमोशन का भी संकल्प नहीं पहन सकते, वो वस्त्र है। ये सारे इमोशंस को साक्षीपन मतलब ही यही है ना? तो मैं आत्मा बाबा के साथ हूं अपने परफेक्ट फॉर्म में, बाबा को बता रही हूँ, बाबा आई द एंजेलिक बीइंग इन माय बबल ऑफ ट्रूथ द वे यू सी मी। इसको कोई ना इमोशन टच कर सकता, ना कोई थॉट टच कर सकता, ना कोई कहानी टच कर सकती। वो बीइंग मैं आपके साथ बाबा इन इमोशंस को माइंड में ऊपर आता हुआ देख रही हूँ, है ना? पर आपकी जीरो आइडेंटिटी है, उस 100% विजिबिलिटी है, आपको दिख सब कुछ रहे हैं, पर 0% आइडेंटिटी है, नो आइडेंटिटी विद दोस थॉट्स एंड फीलिंग्स। थोड़ी सी आइडेंटिटी होगी, वो एक ब्लॉकेज बन जाएगा आपके और बाबा के बीच में। I can see this feeling of tiredness. I, the bodiless being, am not tired. My body is tired. I, the being that is fearless, मैं fear की feeling को ऊपर आता हुआ देख रही हूँ बाबा, पर मैं fearful नहीं हूँ, है ना? मैं तो एकदम fearless हूँ, because I, the being, has nothing to lose and nothing to gain. Right? So I, the being, am absolutely beyond gain and loss. Can you ever lose anything? Can you ever lose a child? Can you ever lose a husband? No, because you don't have a husband and a child. The husband and a child that you have is Baba. You can never lose him. Don't worry. You can never lose him. Right? तो हमें जब ये क्लैरिटी आने लग जाती है ना अपने अनादि स्वरूप की, तो जितना आप उस अनादि स्वरूप को बाबा के साथ लिव करेंगे ना, कि व्हाट डज इट मीन टू बी इन अनादि स्वरूप, ये चीजें अपने आप आपको क्लियरली दिखने लगेंगी एज समथिंग विच इज टोटली फॉरेन टू यू। ये सारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो इतनी पर्सनल लगती है ना हमको, ये सब फॉरेन लगने लगेगी आपको, फॉरेन लैंग्वेज भी और फॉरेन भी लगने लगेगी आपको, है ना? तो टू कनेक्ट विद बाबा, to know I am already with him eternally and always, this is the starting position. I'm never separate from him. What makes me separate from him is identification with these thoughts. It makes me appear that I have become separate from him, but I'm never separate from him. मैं बाबा से कभी अलग नहीं होती हूँ, पर मैं किसी संकल्प से पहचान बना लेती हूँ, तो ऐसा आभास होता है कि मैं अलग हो गई हूँ, कभी होती नहीं हूँ, है ना? तो ये क्लियर, जितना हमें क्लियरली दिखेगा ना बाबा के साथ, एक तो ये चीज बहुत क्लियर होने लग जाती है, हर थॉट एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है। हर थॉट, अगर जिस भी थॉट से मैंने पहचान बना ली, तो फिर वो एक ऐसी माइंड में दुनिया क्रिएट करेगा जो कि एक्चुअल में नहीं है, पर मुझे वो ऐसा, वो मेरा एक लेंस बन जाएगा जिसके थ्रू मैं देख रही होंगी। तभी तो हम बोलते हैं संस्कार है ना। एक आप हॉल ऑफ मिरर में कभी गए? बॉम्बे में तो है शायद, हॉल ऑफ मिरर है ना, वहां पे अलग अलग तरह के मिरर्स हैं। कभी लंबा दिखता है शरीर, कभी मोटा दिखता है, कभी नाटा दिखता है ना? तो ये जो संस्कार है ना हमारे अंदर, वे हॉल ऑफ मिरर्स हैं। एक एक मिरर अलग अलग शेप दिखाता है आत्मा को, पर आत्मा एक्चुअल में है नहीं वैसी। उसे मिरर में दिखता है ऐसे, आत्मा नहीं है ऐसी। इसलिए जब मैंने बोला ना कि मैं कमजोर हूं, तो मैं उस मिरर में मोटे वाले रिफ्लेक्शन को देख के बोल रही हूँ कि मैं वो मोटा वाला मिरर में जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन, वो मैं हूं। मैं वो नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं उसके सामने खड़ी हुई आत्मा हूँ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बाबा जैसी है। और मिरर में कुछ और ही दिख रहा है, और मैं सोच रही हूँ वो मैं हूँ। I'm not that. I'm not what my mind is telling me and showing me.
कभी मोटा रूप दिखाए, कभी नाटा, कभी पतला, कभी लंबा, कभी पता नहीं क्या क्या दिखाता है। हम नहीं हम बाबा के मिरर में देखो, इसलिए हम बाबा के रूप में देखें। हॉल ऑफ मिरर नहीं, गॉड्स मिरर। गॉड, you are perfect as it is right now, and your part is also perfect as it is right now. Until this piece is sold. That's one right yellow Buddha. That's two right yellow. Thank you. Thank you so much, Didi. What a wonderful, always thanks to the drama for this opportunity. है ना, हम सब आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड परफेक्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट फ्रॉम बाबा टुडे। हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, as always, and thank you once again. Thank you very much, Sister Neha. Thank you very much. And thank you, everyone. Baba's angels. Thank you. 1 minute silence me, and then we will close, Didi.